बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. Dear students, we start our today's class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 6 and the period is English language text. This is week number 3 and the video number is 2. Students, in our last video class, we had completed our first unit of final term, which is unit 7, brochures. And in that unit, we had studied about brochures. Now today in this video class, we are starting our second unit of final term, and it is unit 8, fantasy stories. In this unit we will study about the fantasy stories. So let's start from the preview of this unit. The preview on book page 204. The preview start with this question: have you ever imagined being on another planet or under the ocean or meeting fantastic creatures? So students, have you ever imagined yourself in an entirely new world? The world with strange and unusual places, the world where you find imaginary creatures. So fantasy story deals with such kind of strange world and imaginary creatures. Okay, what is the meaning of the word fantasy? The word fantasy means a literary genre dealing with the theme of magic, supernatural and imaginary worlds and creatures. What is the meaning of word fantasy? The meaning of the word fantasy is a literary genre dealing with the theme of magic, supernatural, imaginary worlds and creatures. As the definition says in your book, a fantasy story is a narrative that deals with imaginary times, places and creatures. A fantasy story is a narrative that deals with imaginary times, places and creatures. Okay, why do people like fantasy stories, or why are fantasy stories so popular? Fantasy stories are so popular because they take us far away to new and delightful places. They entertain us by describing the fantastic landscape, and also these stories are full of courageous heroes, evil villains and exciting adventures and terrible monsters. This is why the fantasy stories are so popular. So students, fantasy stories are very common in our lives. We read them in books and in comics, and we also watch them on televisions and in movies. And the best thing about the fantasy story is that they give us the chance to visit new and exciting places. Okay, for example, in fantasy story, it is possible to visit, to go another planet. We can go to another planet in fantasy stories. In fantasy stories, we can travel under the water. In fantasy stories, we can fly through the air. Okay, now moving on to the features of fantasy stories. First feature of the fantasy story is an introduction. An introduction tells us the title of the fantasy story, means the name of the fantasy story. Second feature, descriptive paragraph. In fantasy stories, there are the series of descriptive paragraph one by one, and these paragraphs give the description of the overall atmosphere of the fantasy landscape. Adjectives. In fantasy stories, there are adjectives to describe things. Adverbs. In fantasy stories, adverbs are also used to describe verbs. Similes and metaphors. Okay, what are similes and metaphors? Students, simile is an expression that compares the two things with one another by using the word as or like.
whereas metaphor is an expression that compares the two things with one another without using the word as or like. So similes and metaphors both are used in fantasy stories to make the sentences of fantasy stories more interesting and memorable. The last feature, different tenses. So in fantasy stories, the variety of tenses is used, especially the past tense is used in the fantasy story. So these are all the features of the fantasy stories. Number 1, an introduction. Number 2, descriptive paragraph. Number 3, adjectives. Number 4, adverbs. Number 5, similes and metaphors. And number 6, different tenses. Now the next topic is reflecting. On book page 205, students, in reflecting we have the questions. I am discussing these questions with you. You ask these questions yourself and answer them yourself. The first question is, comics are fantasy stories that use a mixture of words and images. What other kinds of fantasy stories can I think of? So students, what are comics? Comics are those stories which are told through pictures. Comics are those stories which are told through pictures. So besides comics, what other kind of fantasy stories you think of? For example, I think the fantasy stories are Cinderella, Snow White and the Seven Dwarfs, Aladdin and the Magic Lamp, and Charlie and the Chocolate Factory, and the Harry Potter series. So you can tell about your fantasy stories. Which is the most creative fantasy story I have ever read? For example, the most creative fantasy story I have ever read is the Gulliver's Travel. You can tell about your fantasy story. Okay, the next topic is vocabulary. And in this vocabulary, we will study about the term context. Okay. Context refers to the specific circumstances in which words and sentences are written or spoken. Context refers to the specific circumstances in which words and sentences are written or spoken. Means context help us understand the meaning of words used. For example, see your book page 207. On page number 207, suppose you and your friend were swimming at the beach when you suddenly heard him shouting help. So this is the circumstance in which your friend swimming at the beach and he started shouting help. So in this circumstance, as the context, beach, sea, swimming, you would immediately think that your friend was in some kind of trouble, because the context, that is beach, sea, swimming, tells us that in this situation the word help means real trouble, help means real danger. Okay, the next example I am reading is, suppose you and your friend were reading quietly in the study area of your school. Suddenly a mosquito appeared and started buzzing around your friend, and he shouted help. Now in this circumstance, when your friend is studying and a mosquito suddenly appeared and started buzzing around your friend, and he started shouting help. So in this circumstance, you would know that your friend was not in any kind of trouble, as the context, that is study area, mosquito, tells us that in this situation your friend is not in any kind of trouble, and he may be laughingly saying this help. Okay, for your understanding I am giving the explanation in Urdu. Context क्या होता है? Context रेफर करता है कि हम words और sentences को किस तरह से बोलते हैं और किस तरह से लिखते हैं किसी specific circumstance में. Circumstance means situation में, ठीक है? तो first circumstance जो है वो क्या है? आपके friend swimming कर रहे हैं बीच पे और उन्होंने shouting किया help. The word help के इस situation में meaning ये है कि वो friend real में trouble में है, means danger में है. तो उस जो circumstance है इस situation में वो है beach, sea and swimming. ये वर्ड्स हमें बताते हैं सिचुएशन को कि ये इस सिचुएशन में जो वर्ड हेल्प है यहाँ पे इसकी मीनिंग है रियल ट्रबल, रियल डेंजर. द नेक्स्ट एग्जांपल,
When your friend is studying, आपका फ्रेंड जब रीडिंग कर रहा है क्वाइटली स्टडी एरिया में और वहाँ पे सडनली मॉस्किटो अपीयर्ड हुआ और उसने स्टार्ट किया बजिंग साउंड क्रिएट हुई आपके फ्रेंड के आसपास और वो इरिटेट होकर कहता है हेल्प। तो इस सिचुएशन में वर्ड हेल्प की मीनिंग रियल डेंजर नहीं है, यहाँ पे वो जोकिंग वे में कह रहा है, मजाक में कह रहा है हेल्प, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग डिफरेंट है हेल्प के, और हियर द मीनिंग ऑफ द वर्ड हेल्प इज डिफरेंट। Okay, the word help used in these two circumstances and they have the different meanings. In two different contexts, the word help has two different meanings. I hope it is clear to you. Page number 210. So students, come on your book, page 210. The reading description of this extract is given. I am reading this. The books of Roald Dahl have the magical ability to take us to new and completely unexpected places. Have you, for instance, ever imagined what it would be like to be inside a fruit if you have not read on? Okay, so Roald Dahl is the author of this extract, and इस extract में Roald Dahl जो है वो मैजिकल एबिलिटी के थ्रू आपको एक फ्रूट है उसके अंदर ले जाएंगी इस स्टोरी में। ओके, दिस इज द फैंटेसी स्टोरी। आई एम गिविंग यू द ब्रीफ समरी ऑफ दिस फैंटेसी स्टोरी इन माई ओन वर्ड्स। ओके, जेम्स एंड द जायंट पीच इज द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय हुज नेम इज जेम्स हेनरी ट्रॉटर। इन द स्टोरी suddenly the enormous peach appeared in the backyard of James' house. James decides to take a closer look of that peach. James discovers a small hole in the side of the peach, and through the hole James enters into the peach, where he smells of fresh peach and its juice dripping from the ceiling. And then James keeps walking on and reaches in the middle of the peach, and then James enters into the stone of the peach, where he encounters 6 giant insects. And these giant insects are the old green grasshopper, the ladybird, the earthworm, centipede, earthworm, silkworm, old green grasshopper, and spider. Okay, so starting this extract, James and the Giant Peach by Roald Dahl. And then all at once, little shivers of excitement started running over the skin on James' back. अचानक से जेम्स की जो बॉडी है उसके ऊपर जो है वो लिटिल शिवर्स जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो गए एक्साइटमेंट से। मीन्स जेम की जो पूरी बॉडी है वो शिवरिंग कर रही है, कपकपा रही है, कुछ एक्साइटेड होने जा रहा है। समथिंग एल्स ही टोल्ड हिमसेल्फ, something stranger than ever this time is about to happen to me again soon. कुछ और जेम्स अपने आप से कह रहा है कि कुछ और होने जा रहा है, कुछ बहुत अजीब सा, कुछ स्ट्रेंज सा होने वाला है इस दफा मेरे साथ दोबारा से, बहुत ही जल्द कुछ होने वाला है। He was sure of it, he could feel it coming. उसने यकीन से कहा कि हाँ वाकई कुछ होने जा रहा है और कुछ वाकई उसके करीब आ रहा था। He looked around him, wondering what on earth it was going to be. उसने अपने आसपास देखा तो वो सरप्राइज हो गया कि जमीन पे क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, बहुत सरप्राइज था वो। The garden lay soft and silver in the moonlight. The grass was wet with dew, and a million dewdrops were sparkling and twinkling like diamonds around his feet. अब जो जेम्स है वो एक्चुअली गार्डन में खड़ा हुआ था, तो उसने नोट किया कि जो गार्डन है वहाँ पे सिल्वर मूनलाइट से जो पूरा गार्डन है वो ग्रीन होता है, लेकिन वो सिल्वर हो चुका है, पूरा जो है वो सिल्वर गार्डन हो गया है। और वहाँ पे जो ग्रास है वो वेट हो गई है, ग्रास वेट हो गई है किससे? ड्यू ड्रॉप से, मतलब जो वाटर के ड्रॉप्स हैं उससे ग्रास वेट हो चुकी है। और जो इतने सारे ड्यू ड्रॉप्स हैं वो मिलियन ऑफ ड्यू ड्रॉप्स हैं, और उससे जो है वो उसके जहाँ पे वो खड़ा हुआ है उसके पैरों की तरफ लग रहा है कि वो स्पार्कल कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, मीन्स शाइनिंग कर रहे हैं। ओके,
And now suddenly the whole place, the whole garden seemed to be alive with magic. और ये सारा जो सीन था जिसमें जो ड्यू ड्रॉप से शाइन कर रहे थे और पूरा गार्डन सिल्वर लग रहा था, इससे लग रहा था कि पूरा जो गार्डन है, जो पूरी जगह है, पूरी प्लेस है, वो मैजिक से जिंदा हो गई है, अलाइव हो गई है. Almost without knowing what he was doing, as though drawn by some powerful magnet. उससे ये जाने बगैर कि ये क्या होने जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसे लग रहा था कि कोई पावरफुल मैग्नेट है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है. जेम्स हेनरी ट्रॉटर स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द जायंट पीच. अब जेम्स हेनरी ट्रॉटर जो है, वो जो पीच है, जो फ्रूट है, उसकी तरफ स्टार्ट हुआ स्लोली वॉक करना, स्लोली उसकी तरफ मूवमेंट उसने स्टार्ट की. ठीक है. ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस दैट सराउंडेड इट एंड स्टूड डायरेक्टली बीनीथ इट. अब उसने जो है वो उस पीच से पहले एक बैरियर था, उसे उसने क्लाइंब किया, मीन्स उसने जंप किया उसे, और कहाँ पे खड़ा हो गया, जहाँ वो पीच था उसके बिल्कुल साथ ही नीचे खड़ा हो गया. स्टेयरिंग अप एट इट्स ग्रेट बल्जिंग साइड्स. और फिर वो उसकी बल्जिंग साइड्स, मतलब जो प्रोमिनेंट साइड्स थी पीच की, उसको घूरने लगा, देखने लगा. ही पुट आउट अ हैंड एंड टच इट जेंटली विद द टिप ऑफ वन फिंगर. अब उसने अपने हाथ से जेंटली सॉफ्ट टच उसने स्टार्ट किया पीच से, अपनी पीच को अपनी फिंगर से उसने इसको टचिंग स्टार्ट की उसकी. ही फेल्ट सॉफ्ट एंड वार्म एंड स्लाइटली फरी लाइक द स्किन ऑफ अ बेबी माउस. तो उसने फील किया कि जो पीच है उसकी स्किन है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत वार्म है और फरी है. फरी मीन्स मतलब जो बेबी माउस की जो स्किन होती है, जैसे बहुत से जो उसके जो हेयर्स होते हैं वो सॉफ्टनेस शो करते हैं, तो इस तरह से जो स्किन ऑफ पीच थी वो भी ऐसी ही सॉफ्ट थी. He moved a step closer and rubbed his cheek lightly against the soft skin. फिर वो एक स्टेप क्लोजर हुआ उससे और उसने अपने चीक्स को जो स्किन थी पीच के उस पर रब किया, उस पर टच किया, उसके थ्रू टचिंग उसने फील की. एंड देन सडनली while he was doing this, he happened to notice that right beside him and below him, close to the ground, there was a hole in the side of the peach. जब वो ये कर रहा था, अपने चीक्स को रब कर रहा था, तो उसने नोट किया, रब करते करते जब वो नीचे की तरफ आया तो उसने नोट किया कि ग्राउंड में नीचे की तरफ जो पीच है वहां पे तो एक होल है. इट वॉज क्वाइट अ लार्ज होल, द सॉर्ट ऑफ थिंग एन एनिमल अबाउट द साइज ऑफ अ फॉक्स माइट हैव मेड. उसने देखा कि तो बहुत बड़ा सा होल है, बहुत ही लार्ज है, जैसे कि किसी एनिमल ने, फॉक्स ने जैसे खाया हो वहां से, तो वहां से उतना होल हो गया है. नाउ जेम्स knelt down in front of it and poked his head and shoulders inside. अब जेम्स ने क्या किया, अपने आप को जो है वो नीचे झुक गया और उसके सामने, और फिर उसने जो है वो अपने सर को उसके अंदर एंटर किया और फिर उसने अपने शोल्डर्स भी अंदर डाल दिए. He crawled in, he kept on crawling. फिर वो रेंगता रहा, मतलब वो स्लोली वॉकिंग करते हुए अंदर जाता जा रहा था. This is not a hole, he thought excitedly. ये तो कोई होल नहीं है, उसने एक्साइटेड होकर सोचा. It's a tunnel, ये तो एक टनल है. टनल मतलब एक शॉर्ट पैसेज है. ठीक है. The tunnel was damp and murky, and all around him there was a curious bittersweet smell of fresh peach. जो टनल था वो डैम्प था और मर्की था. डैम्प मीन्स कि बहुत ही वहाँ पे फोगी, मतलब बहुत धुंध थी वहाँ पे, और मर्की मीन्स कि बहुत डार्क था, बहुत अंधेरा था वहाँ पे. और वहाँ पे एक उस आसपास पूरी किस तरह की स्मेल आ रही थी, अजीब सी क्यूरियस सी स्मेल थी. बिटर स्वीट मतलब कुछ कड़वी सी और कुछ मीठी सी स्मेल थी फ्रेश पीच की. द फ्लोर वॉज सॉगी अंडर हिज नीज. जो फ्लोर था मतलब जो फर्श था जहाँ पे वो वॉकिंग कर रहा था, मूविंग स्लोली मूव कर रहा था, उसने नोट किया कि वो बहुत सॉगी है, मतलब बहुत वेट है, बहुत गीला सा है. अंडर हिज नीज. The walls were wet and sticky and peach juice was dripping from the ceiling. फिर उसने नोटिस किया, हाथों से अपने जो है वो वॉल्स को टच किया, तो जो वॉल्स थी वो भी बहुत स्टिकी हो रही थी, बहुत वेट हो रही थी, मतलब बहुत चिपचिपी हो रही थी. और पीच जूस वहां से ड्रिप हो रहा था, मतलब गिर रहा था छत पे से, मतलब जो पीच की जो छत है, सीलिंग है, उस पे से जो है वो पीच जूस गिर रहा था. जेम्स ओपनड हिज माउथ एंड कॉट सम ऑफ इट ऑन हिज टंग. इट टेस्टेड डिलीशियस. अब जेम ने जैसे ही अपना मुंह ओपन किया तो उसके मुंह में क्या गिरा, जो जूस ऑफ पीच था वो गिरा, और उसने टेस्ट किया, बहुत ही डिलीशियस था, बहुत मजेदार था. ही वॉज क्रॉलिंग अप हिल नाउ. अब वो ऊपर की तरफ जाने लगा, क्रॉलिंग करने लगा, एज दो द टनल वर लीडिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स द वेरी सेंटर ऑफ द जायंटिक फ्रूट.
अब जब उसने देखा कि टनल जो है वो जो स्ट्रेट वो जा रहा है जहाँ पे, तो वहाँ पे वो सेंटर तक पहुँच गया, उस बड़े से फ्रूट के सेंटर जगह पे पहुँच गया. Every few seconds he paused and took a bite out of the wall. कुछ देर बाद, हर थोड़ी देर बाद वो क्या करता, वो जो है वो वॉल से जो है वो बाइट कर लेता पीच को, मतलब जो फ्रूट था उसको खाता जा रहा था, टेस्ट करता जा रहा था. द पीच फ्लैश वॉज स्वीट एंड जूसी एंड मार्वलसली रिफ्रेशिंग. जो पीच था उसका जो फ्लैश था, यानी कि जो उसका गूदा था वो कितना मज़ेदार था, कितना जूसी था, और उसकी जो स्मेल थी वो कितनी रिफ्रेशिंग थी, कितनी फ्रेश थी. He crawled on for several more yards and then suddenly, bang! The top of his head bumped into something extremely hard, blocking his way. अब जब उसने काफ़ी दूर तक चल लिया तो वहाँ पे उसके बाद उसका जो सर था वो बैंग बैंग जो है वो साउंड है, यानी कि फ़ौरन से एक आवाज़ आई ज़ोरदार, तो वो जो है वो उसके सर पे लगी और उसने जो है उसका जो हेड था टकराने के बाद जो है वो रुक गया और उसके रास्ते में कोई चीज़ आ गई जिसने उसका रास्ता रोक लिया, ब्लॉक कर लिया. He glanced up. In front of him there was a solid wall that seemed at first as though it were made of wood. पहले उसने नज़र डाली, वहाँ पे ग्लैंस किया, देखा तो देखा कि वो एक वॉल है, वहाँ पे एक वॉल है, एक सॉलिड सी वॉल है. तो जो है उसने जब उसको देखा जाके करीब से, तो वो जो है उसको फील हुआ ऐसा कि ये तो कोई लकड़ी है, कोई वुड है, ठीक है, कोई लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़ है. He touched it with his fingers. It certainly felt like wood. फिर जब उसने उसको अपनी फिंगर से टच किया तो फिर उसे यकीन हो गया कि हाँ ये तो वुड ही है. Except that it was very jagged and full of deep grooves. तो वो जो वुड है वो उसके ऊपर बहुत सारी जो अनइवन लाइंस थी. जैग्ड मीन्स अनइवन लाइंस, और डीप ग्रूव्स मतलब वहाँ पे एक गहराई भी थी और वहाँ पे एक और अंदर रास्ता था. तो अभी तक जो है वो सेटिंग हमने देखा कि सेटिंग आउटसाइड द पीच, पहले जो जगह थी वो सारा जो सीन डिस्क्राइब हुआ, लैंडस्केप था, वो पीच के बाहर का था कि वो किस तरह का सीन था, फैंटेसी सीन. उसके बाद जब जेम्स एंटर हुआ पीच में तो वहाँ पे जेम्स ने टचिंग की और जो सारा उसने जो फील किया, जो कुछ उसने फील किया पीच के अंदर, जो स्मेल वगैरह वो सब उसने डिस्क्राइब किया यहाँ पे. उसके बाद अब वो पीच में आने के बाद सेंटर में आया. सेंटर में जो सीड है अब वो सीड के अंदर जा रहा है, जो स्टोन जिसे वो कह रहा है, जिसे वॉल कह रहा है, तो वो सीड के अंदर जा रहा है. अब वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इसका. Good heavens, he said, I know what this is. I have come to the stone in the middle of the peach. Means वो कह रहा है कि जो middle of the peach पे जो स्टोन है ये वो है. अच्छा, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ. Then he noticed that there was a small door cut into the face of the peach stone. He gave a push. It swung open. Okay, अब वो स्मॉल डोर के थ्रू एंटर हो गया है और वो पीच स्टोन जो है वो दो कट में वो एक डोर सा था, तो उसने उसको ओपन किया और फिर वो उसके अंदर एंटर हो गया. He crawled through it and before he had time to glance up and see where he was. इससे पहले वो क्रॉलिंग करते करते जब वो एंटर हुआ, इससे पहले कि वो कुछ देखता कि वो कैसी जगह है, उसको डिस्क्राइब करता, उसने नोटिस किया कुछ आवाज़ें आ रही हैं. He heard a voice saying, Look who is here. And another one said, We have been waiting for you. फिर उसने देखा कि किसी ने उससे कहा है कि देखो कौन आ गया है. फिर अगली आवाज़ क्या आई कि देखो हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे, हम तो तुम्हारा ही वेट कर रहे थे. James stopped and stared at the speakers, his face white with horrors. James रुक गया और उसने नोटिस किया कि वो जो है उसका चेहरा कैसा हो गया, खौफ से सफ़ेद पड़ गया है. His face white with horror means कि वो बहुत जो है वो खौफजदा हो गया था उस जगह पे आकर के. जब उसने स्पीकर्स को देखा, बोलने वालों की तरफ देखा, तो वो स्टॉप हो गया. He started to stand up but his knees were shaking so much he had to sit down again on the floor. जब जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसकी जो नीज थी वो इतनी ज़्यादा शेकिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा हिल रही थी खौफ की वजह से कि वो दोबारा से जो है वो बैठ गया और उससे खड़ा होया ही नहीं गया. He glanced behind him, thinking he could bolt back into the tunnel the way he had come. उसने देखा कि मैं पीछे देखूं, जहाँ से जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ से मैं वापसी मुड़ के वापसी जा सकूं, लेकिन जो वहाँ पे तो जो एंट्रेंस थी वो तो है ही नहीं, वहाँ पे जो रास्ता था वो ख़त्म हो चुका है. But the doorway had disappeared. जो डोर था वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया. There was now only a solid brown wall behind him. अब वहाँ पे सिर्फ एक दीवार थी
और वो जो डोरवे पहले था वो वहां से वो अब नहीं है, वहां पे डिसअपेयर हो गया। जेम्स लार्ज फ्राइटेंड आइज ट्रेवल्ड स्लोली राउंड द रूम। अगर जेम्स की जो लार्ज आइज थी वो डर और खौफ की वजह से पूरी तरह फैल गई और वो बहुत जो है वो डर रहा था। द क्रिएचर्स, उसने पूरे कमरे का जायजा लिया, पूरे कमरे को देखा, नोटिस किया, तो उसने देखा कि वहाँ पे तो कुछ क्रिएचर्स हैं, मतलब कुछ कोई कैरेक्टर्स हैं दूसरे। सम सिटिंग ऑन चेयर्स, अदर्स रिक्लाइनिंग ऑन अ सोफा, वर ऑल वॉचिंग हिम इंटेंटली। कुछ जो है वो चेयर्स पे बैठी हुई थी क्रिएचर्स, और कुछ सोफा था वहाँ पे बैठी हुई थी, और वो सब उसको इंटेंटली देख रहे थे। सब उसको मतलब किसी इंटेंशन से, किसी इरादे से देख रहे थे। क्रिएचर्स और वर द इंसेक्ट्स, अब वो सोच रहा है कि क्या ये क्रिएचर्स हैं या फिर ये इंसेक्ट्स हैं। जेम्स अपने आप से सवाल कर रहा है। एन इंसेक्ट इज यूजुअली समथिंग रादर स्मॉल, इज इट नॉट। अब वो कह रहा है कि इंसेक्ट जो है वो तो यूजुअली स्मॉल सा होता है ना, छोटा सा होता है, कि वो जो है वो उसको इंसेक्ट इसीलिए कहते हैं कि वो इंसेक्ट छोटा है साइज में। अ ग्रास हॉपर फॉर एग्जाम्पल इज एन इंसेक्ट, जैसे कि ग्रास हॉपर है वो एक इंसेक्ट है। So what would you call if you saw a grasshopper as large as a dog? लेकिन अगर आप किसी ग्रास हॉपर को देखें जिसका साइज डॉग के जितना है तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या वो ग्रास हॉपर लगेगा आपको? As large as a dog, you could hardly call that an insect, could you? तो क्या आप उसको कह सकेंगे कि वो अगर डॉग की तरह लार्ज है तो वो ग्रास हॉपर इंसेक्ट है? क्या वो इंसेक्ट लगेगा आपको? There was an old green grasshopper as large as a dog sitting directly across the room from James now. अब यहाँ पे इस रूम में, यानी कि जो स्टोन है जहाँ पे ये आ गया है, अब यहाँ पे जो आकर के अब वो पीछे जाने का रास्ता वो भी नहीं है। अब यहाँ पे क्रिएचर्स थी, और सबसे पहली जो क्रिएचर थी जेम्स के सामने वो कौन थी? ओल्ड ग्रीन ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर था जिसका साइज डॉग के जितना बड़ा था, बहुत लार्ज था, और जेम्स के बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ था उस रूम में। एंड नेक्स्ट टू द ओल्ड ग्रीन ग्रास हॉपर देयर वॉज एन एनर्मस स्पाइडर। और ग्रास हॉपर के साथ ही एक बहुत बड़ी सी स्पाइडर भी थी, ह्यूज सी स्पाइडर थी। एंड नेक्स्ट टू द स्पाइडर देयर वॉज अ जाइंट लेडी बर्ड विद 9 ब्लैक स्पॉट्स ऑन हर स्कारलेट शेल। और फिर स्पाइडर के साथ ही जो है वो एक लेडी बर्ड भी थी जिसकी बॉडी के ऊपर 9 ब्लैक स्पॉट्स थे उसके शेल के ऊपर। Each of these three was squatting upon a magnificent chair. और ये तीनों जो है वो स्क्वाटिंग मीन्स के वो पोजीशन है जिस पे ये बैठे हुए थे, मतलब उकड़ू बैठे हुए थे चेयर के ऊपर। बहुत शानदार सी चेयर थी, मैग्निफिसेंट सी, उसके ऊपर ये बैठे हुए थे तीनों। कौन? ग्रास हॉपर, स्पाइडर और लेडी बर्ड। ऑन अ सोफा नियर बाय रिक्लाइनिंग कंफर्टेबली इन कर्ल्ड अप पोजीशंस देयर वर अ सेंटिपिड एंड एन अर्थवॉर्म। तो सोफा के साथ ही जो है वो कर्ल्ड अप पोजीशन में बहुत ही स्टाइल से जो है वो कौन बैठा था? सेंटिपिड और अर्थवॉर्म भी जो है वो सोफा पे रिक्लाइनिंग, मतलब वो बहुत आराम से बैठे हुए थे सोफा के ऊपर कर्ल्ड अप पोजीशन में, सेंटिपिड और अर्थवॉर्म। ऑन द फ्लोर ओवर इन द फार कॉर्नर देयर वाज समथिंग थिक एंड वाइड दैट लुक एज दो इट माइट बी अ सिल्क वॉर्म। और फिर फ्लोर पर, दूर ही कहीं फ्लोर पर जो है वो एक और इंसेक्ट था, यानी कि सिल्क वॉर्म था, जो कि थिक सी उसकी बॉडी थी, और वो जो है वो दूर जो है वो स्लीप कर रहा था, सो रहा था। बट इट वॉज स्लीपिंग साउंडली एंड नोबडी वॉज पेइंग एनी अटेंशन टू इट। तो वो सो रहा था और वो साउंडली, मतलब वो खराटों से सो रहा था और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, कोई अटेंशन उसको नहीं पे कर रहा था। ईच वन ऑफ दीज क्रिएचर्स वॉज एट लीस्ट एज बिग एज जेम्स हिमसेल्फ। और ये सारे ही क्रिएचर्स, यानी कि स्पाइडर, ग्रास हॉपर, अर्थवॉर्म, सेंटिपिड, ये सारे जो क्रिएचर्स थे ये सारे इतने ही बड़े थे साइज में जैसे कि जेम खुद। एंड इन द स्ट्रेंज ग्रीनिश लाइट दैट शोन डाउन फ्रॉम समवेयर इन द सीलिंग दे वर एब्सोल्युटली टेरिफाइंग टू बीहोल्ड। और फिर एक स्ट्रेंज सी ग्रीनिश लाइट थी जो कि इस रूम में छत से कहीं आ रही थी, और उस रोशनी में ये सारे ही क्रिएचर्स जेम्स को बहुत ही खौफनाक लग रहे थे। जेम्स इनसे बहुत डर रहा था। आई एम हंग्री द स्पाइडर अनाउंस सडनली। फिर स्पाइडर ने कहा कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत हंग्री हूँ। स्टीयरिंग हार्ड एट जेम्स, मतलब जेम्स की तरफ उसने स्टीयरिंग करते हुए, घूरते हुए कहा। नेक्स्ट, आई एम फैमिश्ड द ओल्ड ग्रीन ग्रास हॉपर सेड। अब एक और क्रिएचर है ओल्ड ग्रीन ग्रास हॉपर, अब वो भी कह रही है
वो भी कह रहा है कि आई एम फैमिश। फैमिश मीन्स कि मैं भी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है और मुझे तो बहुत ज़्यादा भी भूख लग रही है। सो एम आई, द लेडी बर्ड क्राइड। अब लेडी बर्ड ने भी जो है चीखते हुए कहा कि हाँ मैं भी, मुझे भी तो भूख लगी है। द सेंटिपिड सैट अप अ लिटिल स्ट्रेटर ऑन द सोफा। अब सेंटिपिड जो है वो स्ट्रेट होते हुए सोफा पे बैठ गया, स्ट्रेट हो गया फौरन, और उसने कहा कि एवरीवन इज फैमिश मीन्स सभी को भूख लगी है, वी नीड फूड, और हम सबको ही खाना चाहिए। 4 pairs of round black glassy eyes were all fixed upon James। अब ये सारी जो चारों आंखों थी, चारों जो पेयर ऑफ आइज थी यानी कि ग्रास हॉपर की, और ये सारे इंसेक्ट जो है वो इन सब की आंखें किस पे थी? जेम्स की तरफ थी, और सब जेम्स को देख रहे थे घूर घूर के। The centipede made a wriggling movement with his body as though he were about to glide off the sofa, but he didn't। सेंटिपिड ने रिगलिंग मूवमेंट की, मीन्स उसने जो है वो सेंटिपिड जब मूव करता है तो उसकी बॉडी थोड़ी सी आगे पीछे होती है ना, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, तो वैसे उसने मूवमेंट की, यानी कि ट्विस्टिंग मूवमेंट की, और फिर उसके बाद जो है वो उसने अपने सोफा से उतरने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उतर सका। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज एंड अ लॉन्ग साइलेंस। फिर एक लॉन्ग पॉज आ गया और कंप्लीट साइलेंस हो गई रूम में। द स्पाइडर, हु हैपेंड टू बी अ फीमेल स्पाइडर, opened her mouth and ran a long black tongue delicately over her lips। अब जो स्पाइडर थी, जो कि फीमेल स्पाइडर समझी जाती है, उसने क्या किया? अपना माउथ ओपन किया, और उसने जो है वो अपने माउथ ओपन करने के बाद अपने लिप्स के आसपास जो है वो टंग को उसने जो है वो फेर के देखा, और जो है बहुत उसको जो भूख लग रही थी। Aren't you hungry? she asked suddenly leaning forward and addressing herself to James। अब उसने स्पाइडर ने आहिस्ता आहिस्ता जेम्स की तरफ आते हुए पूछा कि तुम्हें भूख नहीं लग रही है? क्या तुम जो है वो तुम्हें भूख नहीं लग रही है? Poor James was backed up against the far wall, shivering with fright and much too terrified to answer। बेचारा जेम्स बहुत डर गया और फिर वो वॉल की तरफ पीछे होने लगा, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो खौफ से इतना खौफ उसको आ रहा था कि वो किस तरह से इसकी बात का जवाब दे स्पाइडर की, और स्पाइडर उसकी तरफ आ रही है और जेम्स पीछे वॉल की तरफ जा रहा था खौफ से। ठीक है, व्हाट्स द मैटर विद यू? द ओल्ड ग्रीन ग्रास हॉपर आस्क्ड, यू लुक पॉजिटिवली इल। अब ग्रास हॉपर ने उससे बोला कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम बहुत काफी बीमार लग रहे हो। ही लुक्स एज दो ही इज गोइंग टू फेंट एनी सेकेंड। द सेंटिपिड सेड, सेंटिपिड ने कहा कि हाँ ऐसा लग रहा है कि ये इतना ज़रा डर रहा है कि ये किसी वक्त भी बेहोश हो जाएगा, फेंट हो जाएगा। Oh my goodness, the poor thing, the ladybird cried। I do believe he think it's him that we are wanting to eat। अब लेडीबर्ड ने चीखते हुए कहा, ओ माई गॉड, कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि हम इसको खाने की नहीं है, हम इसकी तरफ देख रहे हैं, हम इसको खाना चाह रहे हैं, हम कहीं ये तो नहीं सोच रहा। There was a roar of laughter from all sides। अब ये सारे ही जो इंसेक्ट्स थे वो सब हंसने लगे, और सब जो है वो जेम्स की तरफ देख करके उसका मजाक बनाने लगे। Oh dear, they said, what an awful thought। अब वो कह रहे हैं कि ओ डियर, क्या तुम ये क्या सोच रहे हो, कितनी अजीब सी सोच है ये कि हम तुम्हें खाएंगे। You must not be frightened, the ladybird said kindly। We would not dream of hurting you। अब लेडी बर्ड ने कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और हम तुम्हें जो है वो नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। उसने बहुत उसको मेहरबानी से कहा, किसको? जेम्स को। यू आर वन ऑफ अस नाउ, डिडंट यू नो दैट यू आर वन ऑफ द क्रू, वी आर ऑल इन द सेम बोट। अब उसने बोला कि तुम नहीं जानते कि तुम हम में से ही हो, और अब तुम हमारे पार्टनर हो, हमारे क्रू हो, मतलब हमारे जो ग्रुप है उसके पार्टनर हो, और अब हम सब जो है वो एक ही कश्ती के सवार हैं, हम सब एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। ओके, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे लॉन्ग, द ओल्ड ग्रीन ग्रास हॉपर सेड। हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे, पूरा दिन। और ये किसने कहा? ग्रास हॉपर ने कहा, वी थॉट यू वर नेवर गोइंग टू टर्न अप, आई एम ग्लैड यू मेड इट। और हम सोच रहे थे कि तुम जो है वो वापसी नहीं जाओगे, और बिल्कुल अब जो है वो हमें लग रहा है कि तुमने ऐसा कर दिखाया। सो चीयर अप माई बॉय, द सेंटिपिड सेड, एंड मीनवाइल आई विश यू वुड कम ओवर हियर एंड गिव मी अ हैंड विद दीज बूट्स।
अब सेंटिपिड ने कहा, इसी दौरान सेंटिपिड ने कहा कि जो है वो तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे पास आओ और ये जो मेरे बूट्स हैं इनको प्लीज़ निकालने के लिए मेरी हेल्प करो. इट टेक्स मी आवर्स टू गेट देम ऑल ऑफ बाय माई सेल्फ. ये मुझे घंटों लग जाते हैं इसमें कि जब मैं अपने जो बूट्स हैं उनको उतारता हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता. प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए. क्योंकि सेंटिपिड के बहुत सारे वो होते हैं ना जो उसके okay, the next topic here the extract ends and यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट के एंड में हमें पता चलता है कि जेम्स जो है वो इन इंसेक्ट्स का फ्रेंड बन गया है. तो ये जो ग्रास हॉपर है, स्पाइडर है, लेडी बर्ड है और सेंटिपिड है, ये सारे इसके फ्रेंड्स बन गए हैं. और जो है वो अब जो पीच है इसमें ये लोग क्या एंजॉयमेंट करेंगे इसके आगे डिस्क्रिप्शन नहीं है इस स्टोरी में. यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो गई. द नेक्स्ट टॉपिक इज द राइटिंग वर्कशॉप after this extract. Okay, writing workshop on book page 224. In this writing workshop you will study how to write a fantasy story. In this writing workshop you have a chance to write your own fantasy story after reading by the extract, and the next reading extract is also given in this unit. So in this writing workshop you are open to write your own fantasy story. Writing a fantasy description involves being able to imagine yourself in an entirely new world. As the writer, you are free to create whatever world you want. For this workshop, you are going to write a fantasy description of a place of your own creation. तो इस writing workshop में आपको अपनी fantasy landscape को describe करना है अपनी story में. Okay, focusing all these features and the purpose, the audience, and this writing procedure, you are given a task to write your own fantasy story. Okay. Okay, I will further read this writing procedure for you. The first is gathering the information. Imagine a world different from your own. What kind of things can you find around you? Use the following questions as a guide to what this world is like. The first is sights. Sights. Start with your own two eyes. What can you see around you? Is this landscape hilly, desert, or mountainous? Is the landscape covered in snow? Is there a sun? Can you see any buildings? What colors are the things around you? So first of all, you have to focus on the sights. आप अपने आसपास क्या देखते हो आपको वो describe करना है in fantasy story अपने landscape में. The second is sounds. What sounds can you hear around you? Are these sounds made by nature, by animals, or by people? Are these sounds pleasant or unpleasant? What is interesting about these sounds? So you have to write about the sounds next. After describing the sights, you have to write about the sounds. Touch. What are you standing on? Can you feel soft grass or hot sand under your feet? What other physical sensations can you feel? Is there a cool breeze blowing against your face? Are you sweating because of the heat of the sun? So after sounds, you have to describe the touch. Touching मतलब आपने आसपास जो things थी उनको touch करके क्या feel किया? You have to write about that in your fantasy landscape. Taste. Are there any things around you that can be described by taste? तो टचिंग के बाद आप टेस्ट भी अगर कर रहे हो तो जो आसपास जो चीज़ें हैं उनको डिस्क्राइब करना है. स्मेल्स. आर देयर एनी थिंग्स अराउंड यू दैट हैव अ डिस्टिंक्टिव स्मेल, फिर स्मेल को डिस्क्राइब करना है सेम. देन ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल. सो after gathering all the information of your fantasy landscape, after choosing the topic of your fantasy story, you have to start writing. You have to organize the material. From your notes, choose the features you wish to include in your description. Then organize your notes accordingly. Think about how you want to introduce your world to your audience. Organize what you want to write about into short paragraphs. So आपको अपने description में ये सारे जो sense हैं, sight, smell, sound, touch, इनको short paragraphs में describe करना है. Adjectives और similes, metaphors, सारे features को use करते हुए. Then write a description of your fantasy landscape. Write one paragraph each to describe the particular feature of your landscape. Concentrate on describing the things around you.
तो आसपास जो थिंग्स हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करना है डिस्क्राइब करने के लिए फैंटेसी स्टोरी में. यूज द डिस्क्रिप्शंस इन दिस यूनिट एज मॉडल्स फॉर योर राइटिंग, देन रिवाइज एंड एडिटिंग. Then after writing all the fantasy story, you have to revise and edit the mistakes in the fantasy story. So I am giving you the homework, home task. So this is your home task to write your own fantasy story on your favorite topic and describe the fantasy landscape in your own words. Okay? So this is your task to write your own fantasy story and describe all the landscape of your fantasy story in detail. So this is all we have discussed in today's period, in today's video class, all the stuff of unit 8 fantasy stories. In the next class we will start our third unit of final term, and till then take care. Allah Hafiz.